Good evening, everyone. It's a pleasure to have you here today this evening. I would like to introduce Dr. Rajesh Chandra Mishra. He's an accomplished intensivist, internist, and teleconsultant with over 20 plus years of experience in critical care and digital health. Founder and director of Shaibia Comprehensive Care Clinic, pioneering telemedicine and tele-ICU solutions for underserved communities. Expertise in advanced ventilator management, hemodynamic monitoring, nephrocritical care, and emergency response. Former president of ISCCM, chancellor of ICCM, and India's national representative of ESICM. Global thought leader shaping policies and education in critical care. A recognized thought leader and speaker at global forums, Dr. Mishra is deeply committed to leveraging technology and education to transform critical care delivery and strengthen healthcare systems. I would like. Tell your own experience. He's also been helping. He treated my my husband who's no more, and I can't talk about it, it's just too much. But yeah, he was a major support system, and one phone call and he was there and helping my husband just with whatever that he could. He's not just only a great doctor, but a great human being, and it's just inexplainable that, I could just connect with him. Not just on medical terms, but I could talk to him and tell him this is the problem that's happening. And he was right there. So not just a doctor, but an excellent human being. So that's my experience. So I would like to introduce Mahendra Bhai Patel, who was an ex-past president of AMA and a very known industrialist. And Mahendra uncle, please come in and felicitate him, please. Just take the opportunity, because I am also under his care. In some ways, you see, my experience also has been with him since my father's time, and then recently, about 2 years back, I suffered a serious issue with my lungs for some reason, and even the best of the doctors in Ahmedabad and in Mumbai could not diagnose or cure me for about almost 2.5 months. I lost about 8-9 kilo weight, and I could hardly breathe and all that. And it took only Rajesh Bhai to just diagnose us correctly, give me one medicine, and in 4 days, I was absolutely normal. You can imagine, and of course I know him since long, but somehow his name did not strike my mind in the beginning. So I had to suffer about 2.5 months before getting the cure. And you can imagine that when he talks about healthy aging, I'm an example. I'm now 77. And so just to tell you, and I travel extensively. I just came from Japan 2 days back. And after 10 days, I'm again going to England, and then I'm going to Germany. I do about 15 days of travel a month overseas since last so much time. That's part of my business. And that is all possible because of his advice. So I think, please listen to him very carefully, and what he says has got some, you got example me and what Sheetal said. Thank you. So I would like to facilitate. Thank you, Andrew. Thank you for coming here. Thank you. So, good evening. Namaskar. I will try to talk between Hindi and English. बहुत अच्छी मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए मैं गुजराती में नहीं बोलूँगा. जहाँ तक हो सकेगा हिंदी में बोलूँगा, जिससे सबको समझ में आए. बट ऐसा कोई है जिसको कि हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती? सबको समझ में आती हिंदी? बस. तो इन बिटवीन कुछ वर्ड्स, बिकॉज पर्पस जो है वो सॉल्व तभी होगा जब सब लोग समझ पाए. और ज़्यादा मैं बोलने से ज़्यादा आप लोगों से भी सुनना चाहूँगा कि आप लोग क्या समझते हैं एजिंग के बारे में. तो बिफोर
I talk about the gift of time that is aging with grace, why do you think, आपको क्या लगता है, अच्छे खासे लोग यहाँ आए हैं, आपको क्यों लगता है कि इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है? एजिंग का एक कॉन्सेप्ट है, अपना काम ये रिटायर हुए, ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है चलते रहे, बट एजिंग विद ग्रेस क्यों ऐसा होना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है? What is the purpose? What is the ultimate purpose of, as a human being, what is our most desirable thing we want to achieve? Because most health problems start after certain age, 45. But why do you want to with grace? ठीक है, जैसे चल रहा है चलना है, why you want with it? Because then health becomes priority now. After certain age, to remain active. Active. Okay, Not okay. Retirement should not be there. Retirement Yes sir. should not be सर आप बैठे रहिए सर, बैठ के बोल सकते हैं जी, ठीक है। सो जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था उसका सिर्फ एक वर्ड में आंसर है, एक वर्ड में, वो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। वॉट एवर वी आर डूइंग सिंस वी आर बॉर्न until we die, we all have one desire, that we should be independent. हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। तो बेसिक एजिंग विद ग्रेस का कॉन्सेप्ट यही है कि आप जो कुछ भी करिए, आप किसी पे डिपेंडेंट मत होइए। जिस दिन आपकी हेल्थ ऐसी हो जाए, किसी भी रीजन से, किसी भी चीज के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़े, वो एक बड़ी अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है, और वहां से आप मेंटली, फिजिकली आप अपसेट होते हैं, डाउनफॉल होता है, और वो एक किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। तो जो भी मैं बात करने वाला हूं उसके पीछे का क्रक्स ये है कि टिल वी डाई, मे बी इट इज एपीजे अब्दुल कलाम or maybe anybody, all these great people, they have one desire and they achieved that. Even Ratan Tata, all these people, they were working till their last day of death, and this anybody can achieve if they follow certain basic thing. As a human being, as a person, in our development we have worked for 60-70 years or maybe 50 years. You have all the experience in life, you have all the knowledge. You may not contribute extensively physically, but mentally you can contribute to everybody, to your society, to your surrounding, to your family, and that you can only do when you are physically fit, independent. I will say it repeatedly, independent. जिस दिन आप एक लकड़ी पे भी आ गए ना, सॉरी टू से लोग यूज कर रहे हैं, तो आपकी थोड़ी डिपेंडेंस तो बढ़ गई। वो स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। आप अपने पैरों पे ही चल के चलने चाहिए, इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो आप रूटीन काम कर रहे हैं उस पे, खाने पीने चलने सोने, इस पे किसी पे डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। और अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप अपने बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको अपनी नॉलेज दे सकते हैं। जो आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, आप कुछ भी हो, एक 60 साल का आपका दुनिया तो आपने देखी है ना, वो 30 साल के आदमी को तो नहीं मालूम होगा ना, कितनी भी नॉलेज हो जाए, वो आप उसको पास ऑन तो करेंगे अपनी जनरेशन को। तो उसको पास ऑन करने के लिए भी तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। तो बेसिकली दैट्स व्हाट वी वांट, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अक्रॉस द वर्ल्ड एजिंग पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। इंडिया हैज लेस, other developed world has more of the aging population, but we are also gradually following. Now our life expectancy is going 70 plus, 74, 75. Developed world it is 100. Very soon we will be catching. Now Tata AIG is giving you insurance up to 100 years. I'm not trying to tell them that they are advertisement, but up to 100 years. That means they are expecting that you can live up to 100 years. They are giving insurance up to 100 years of age. This is happening because you can live that. But to live 100 years of productive life, fruitful life, independent life, it's not an easy job. You have to work for it. You have to earn it and you have to maintain it. So, I give you example. There are people who are worried, like हम अपना काम कर पाएंगे कि नहीं, चल पाएंगे कि नहीं, हमारे पास मसल स्ट्रेंथ है कि नहीं, हम चलते हैं थक जाते हैं।
तो ये जो थॉट आता है ना आपके दिमाग में, ये गलत थॉट है। rather than ये होना चाहिए कि हमें इतनी मोमेंट मेंटेन करनी चाहिए, इतना मोमेंट रखना चाहिए कि हम अपना काम खुद कर सके। वो कैसे अचीव होगा? थॉट क्या आता है कि हमने आज 50 साल 55 साल 60 साल अब काम कर लिया, अब हम आराम करेंगे। ये थॉट जहां से आया वो थॉट ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप जितना 40 साल की उम्र में काम करते थे उतना काम नहीं कर सकेंगे, बट 60 साल की उम्र में आप सोचें कि आप बिल्कुल बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, लेट जाएंगे। द डे यू डू, विद इन ए मंथ आपके बॉडी के हर पार्ट काम करना कम कर देंगे, आपके मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाएगी। आप अगर अपनी एक्टिविटी सर्टेन लेवल तक नहीं मेंटेन करेंगे, दैट इज एटलीस्ट 30 डेज इन ए पर डे 30 मिनट्स, तो आपकी जो मसल्स हैं वो वीक होने लगेंगे। इसको हम सार्कोपेनिया बोलते हैं। आपकी मसल्स वीक होने लगेंगी, फिर आपको चलने में तकलीफ होगी, बैठने में तकलीफ होगी, रूटीन काम करने में तकलीफ होगी। तो पहली चीज होनी चाहिए कि आपकी पर्सनल फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए जो फ्रैलिटी है उसको दूर रखना है। देयर आर सर्टेन डिजीज यू कैन नॉट विल टॉक अबाउट, बट एटलीस्ट आप ये दिमाग में जो थॉट लोग के जो इम्बाइब कर लेते हैं कि हम अब काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे, अब बच्चे खिलाएंगे, बच्चे कमाएंगे, नहीं सर। आप प्रोडक्टिव, आपको सोचना है कि लास्ट डे तक बने रहना है, और वो तभी हो पाएगा जब सोचेंगे एटलीस्ट 30 मिनट। वो 30 मिनट आपका वॉक हो सकता है, 30 मिनट की आप इवन बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, बट डोंट स्टॉप। सो फर्स्ट थिंग इज कि टू मेंटेन योर फ्रीडम, टू अवॉइड द फ्रेलिटी, टू अवॉइड द वीकनेस, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन डिग्री ऑफ एक्टिविटी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये डर लगता है कि हम जाएंगे गिर जाएंगे, हम जाएंगे वीक हैं, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ये फियर आना ही नहीं चाहिए। जब ये फियर आता है तभी आप अपने को रिस्ट्रिक्ट करते हो। वो विशेष साइकिल है, एक बार आपने रिस्ट्रिक्ट कर लिया, जब आपने सोचा ही नहीं कि हम वीक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस स्ट्रेंथ में नहीं कर सकते, उतने स्टेमिना में नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कर ही नहीं सकते। तो ये थॉट नहीं आना चाहिए। सेकेंड थॉट है फिजिकल स्ट्रेंथ, तो उसको मेंटेन कैसे करें। दिस वन एग्जाम्पल दैट दिस 70-year-old लेडी एटलीस्ट शी डूइंग ओनली 10 दंड बैठे के करते हैं डेली। वहीं पे एक लेडी है जो कुछ नहीं करते। विद इन ए 3 month टाइम यू कैन एग्जाम्पल इट के इन योर फैमिली आप सेम एज ग्रुप, एवरीथिंग सेम, 1 person does 15 minute exercise daily and 1 person doesn't do anything. Just example, 3 months. You will find the person who is doing daily exercise, he can maintain his routine properly. And the person who is not doing anything, just sitting, after 3 months, they will even find to walk, difficult to walk. चल भी नहीं पाएंगे, चलेंगे तो सांस फूलेगी। इवन आपका हार्ट लंग ठीक हो तभी भी चलेंगे, सांस फूलेंगे। सो कोई भी एक्सरसाइज, मैं नहीं बोलता कि आप दंड बैठे के करिए, बट जो आपको आप बोलोगे साहब हमारे घुटनों में दर्द हो गया, हिप में दर्द हो गया, हमारी सांस फूलती है, इवन आप बैठ के, इवन आप लेट के मसल्स की एक्टिविटी कर सकते हैं। बट मसल की एक्टिविटी, एक्टिव एक्टिविटी कभी बंद नहीं होनी चाहिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो पहला लेसन ये है कि पहला हमारा एम है एजिंग विद ग्रेस में कि इंडिपेंडेंस करना है, अपने को इंडिपेंडेंट रखना, और उसका पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी इतनी करनी। अब कौन सी मसल इंपॉर्टेंट है? तो आपके स्ट्रेंथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं एंटी ग्रेविटी मसल, जो आपको स्टैंड रखती हैं, बैठने में हेल्प करते हैं। दैट इज आपके हिप जॉइंट की मसल जो होती हैं, उसमें भी इंटीरियर कंपार्टमेंट की, मैं बहुत एनाटॉमिकल। अगर आपके पैर ठीक है, प्रॉब्लम आदमी कमजोर पैर से क्यों होता है? आपके ऊपर का बॉडी का वेट बढ़ता जाता है, बोन वीक होते जाते हैं, मसल्स कम होते जाते हैं, फिर आप चलना कम कर देते हैं। तो वेट के बारे में मैं आऊंगा बाद में, बट जब आप एज कर रहे होते हैं तो हमें यह लगता है कि हमें जितने खाने की जरूरत पहले थी उतना ही खा रहे हैं। आपकी एज के हिसाब से भूख कम हो जानी चाहिए, नहीं हो रही तो आप कम करिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है। ये साइकिल यू टर्न होती है। जब आप बच्चा पैदा होता है थोड़ा सा खाता है, जब आप यूथ में होते हैं आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जब आप एज होते हैं तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है। आपको ये साइकिल, ये चीज़ हमारे सबको मालूम है, धर्मशास्त्रों में पहले लोग होते थे कि पैदा होते थे एक छुट्टी, फिर लोग वन में चले जाते थे, वहाँ पे सिर्फ कंदमूल खा के देन दे यूज्ड टू डाई, बिकॉज दैट वाज द आइडियल वे टू डैट। प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कंप्लेन करते हैं साहब भूख नहीं लग रही है। क्यों भूख नहीं लग रही? पहले मैं 4 रोटी खाता था, अब 2 रोटी खा पाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 2 रोटी भी आपके लिए ज़्यादा है सर, आपकी तो रिक्वायरमेंट 1 रोटी है।
आप 2 भी क्यों खा रहे हैं, भी तो वजन आपका कम नहीं हो रहा है। सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे आप एज होते हो आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है, आपके मेटाबॉलिज्म कम होता है, तो इवन आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती है। दैट यू कैन असेस फ्रिक्वेंटली। बहुत आजकल तो आपके घर में आपके हाथ में घड़ी बता देती है कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। आप जितना पर डे, अगर आप जितना भी 100, अगर जैसे एग्जांपल देता हूं कि 200 कैलोरी भी एक्स्ट्रा आप खाते हैं पर डे, और ऐसा आप 10 दिन करते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट 1 kg वेट बढ़ सकता है। और 200 कैलोरी का मतलब 1 कप एक्स्ट्रा चाय। तो हमारे दिमाग में रोटी चावल बैठा हुआ है, कैलोरी नहीं बैठी हुई है। द डे वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कैलोरी के लिए खा रहे हैं, और आजकल सारे अवेलेबल है, तो आपको ईजी हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है समझना कि हम जो खाना खाते हैं अगर उसमें प्रोटीन कम है तो हमारी मसल वीक होगी, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारी मसल वीक होगी। तो इंडिपेंडेंस के लिए एंटी ग्रेविटी मसल की एक्सरसाइज करना, उसके लिए प्रोटीन का उपयोग करना। अब हमारी जितनी वेजिटेरियन डाइट है, लोग बोलते हैं उसमें प्रोटीन कम होता है, ऐसा नहीं है। हम जो खाना खाते हैं ऐसा खाना खाते हैं। अगर आप जितनी रोटी या जितने चावल पहले खा रहे थे उतने ही खाएंगे तो आपको क्वालिटी फूड नहीं खा सकेंगे, जिनमें प्रोटीन होता है, जिसमें बैलेंस फूड होता है। तो आपका वेट बढ़ेगा और प्रोटीन कम रहेगा, मसल वीक होती रहेगी। वो आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 50 के बाद एक सजेशन है, कोई ऐसे डाइटिशियन से आपको कंसल्ट जरूर करना चाहिए एक बार, जो आपको बता सके कि ये आपका बैलेंस फूड है। उसका खर्चा 200-300 रुपये होता है, बट वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, और उसको फॉलो करना। द सेम फूड विल नॉट अप्लाई, यू हैव टू चेंज योर फूड हैबिट आफ्टर 50 ईयर्स। सो मसल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट, और वो आपके इंडिपेंडेंस को मेंटेन करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है रेगुलर स्क्रीनिंग। एक चीज मैं बता दूं कि एक्सेप्ट आप सड़क पे जा रहे हो और कोई आपको हिट कर जाए, ये डिफरेंट कंडीशन है, उसमें भी आदमी सडनली सब लोग नहीं मरते। लाइफ में कुछ भी अचानक नहीं होता, एटलीस्ट मेडिकल डिजीज तो बहुत कम ऐसी है जो अचानक होती है। इवन हार्ट का अटैक भी अचानक नहीं आता, उसके पहले आपको सिग्नल मिलते हैं, हम लोग नहीं पहचान पाते तो प्रॉब्लम है। सेम बेट अप्लाइज फॉर एवरीथिंग। आपको बहुत से ऐसे पैरामीटर्स मिलते हैं, और आप साइंस को पता है, जो आप बेसिक चेक करके अगर उसको रेगुलर या आपके एज के हिसाब से उसको नॉर्मल रखते हैं, तो आपको जो अचानक जो सरप्राइजेस मिलते हैं कि हार्ट अटैक आ गया या कैंसर आ गया या लकवा मार दिया, वो चीज़ें बहुत कम हो सकती हैं। ये लाइफ स्टाइल की डिजीज़ हैं जिनको पकड़ा जा सकता है। एटलीस्ट जब आप 50 प्लस हो जाएं तो एटलीस्ट अपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप लोग बहुत से ऐसे पेशेंट हैं, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल में देता हूँ। जामनगर यूनिवर्सिटी है जो पहली, वहाँ पे आपकी ज्योतिष की यूनिवर्सिटी है, उसके एक पहले जो वाइस चांसलर थे, उनको इतना ज्योतिष की जानकारी थी कि वो निकले घर से और बोल के निकले कि मैं घर से जा तो रहा हूँ, जिंदा वापस नहीं आऊँगा, फिर भी मुझे जहाँ जाना है मैं जा रहा हूँ। और उसके पहले ही वॉज वेरी हेल्दी, नो मेडिकल प्रॉब्लम, आर नेवर टेस्टेड, बट ही वॉज नॉट हैविंग एनी मेडिकेशन टेकिंग। ही वेंट फॉर हिज, जहाँ भी उनको मैरिज जाना था, जब मैरिज से वापस आने लगे तो उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई, और इतनी वॉमिटिंग हुई कि बाय द टाइम वो अहमदाबाद पहुँचे वो अनकॉन्शियस हो गए। इनको कोई डायबिटीज़ नहीं था। मेरी जिंदगी का पहला पेशेंट जैसे देखा था जिसका ब्लड शुगर 2400 था मेरे पास जब आए थे, तो ही वॉज कोमेटोस, नो पल्स नो बीपी। वी वर्क विथ हिम। उनके सभी रिलेटिव को मानते सर ये तो बचने वाले नहीं, क्योंकि ये तो खुद ही बोल चुके हैं कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। एंड वी वर्क विथ हिम एंड आई बॉट हिम आउट। ही वॉज ऑन वेंटिलेटर, ऑन लाइफ सपोर्ट 10 days, ही केम आउट, एवरीथिंग गॉट एवरीथिंग नॉर्मल। उसके बाद उन्होंने मेरी खुद की कुंडली बनाई, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई जो सच निकली, मतलब ही वॉज सो नॉलेजेबल। कहानी मैंने क्यों बोला कि ही वॉज व्हेन ही वॉज लिविंग होम ही वॉज 65, वेरी हैप्पी बट नेवर टेस्टेड। ये शुगर एक दिन में इतना अचानक नहीं बढ़ा, इट वॉज अंडरलाइंग बट इट वॉज नेवर टेस्टेड। सो लर्नेड, सो वेल टू डू पर्सन, इवन इफ यू आर नॉट टेस्टिंग स्क्रीनिंग। आपको अचानक प्रॉब्लम आई तो आपको लगेगा अचानक, बट अचानक नहीं आता, आपने कभी टेस्ट। तो एटलीस्ट कुछ ऐसे रोग हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं। हार्ट अटैक आ सकता है, लकवा मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट डायबिटीज, हाइपरटेंशन के लिए आप रेगुलर चेक करिए। बहुत से ऐसे फीमेल को मैं जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ स्क्रीनिंग, सर्वाइकल स्क्रीनिंग करी, पैपिस्मियर, उसमें उनका कैंसर पकड़ा गया और ट्रीटमेंट हो गया, कंप्लीट क्योर हो गया। और ऐसे भी मैं फीमेल को जानता हूँ जिन्होंने कभी अपना नहीं किया, 55 साल में अचानक उनको सर्वाइकल कैंसर हुआ, तब तक वो मेटास्टेसिस हो चुकी थी और कुछ नहीं कर सकते थे।
तो कुछ ऐसे रूल हो गए हैं आजकल, तो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन भी आ गई है जो कि बहुत इफेक्टिव है, और हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपके 20 साल से कम हुआ है तो लीजिए, दैट इज आल्सो प्रिवेंटेबल वे। बट एटलीस्ट वंस यू बिकम 45 प्लस, एवरी 3 ईयर 4 ईयर सर्वाइकल कैंसर के लिए, कोलन कैंसर के लिए, आपके फैमिली में अगर किसी कैंसर की हिस्ट्री है तो उसके लिए आप 3 साल या 5 साल में एक बार स्क्रीन कर लेते हैं तो यू आर रिलेटिवली सेफ। साल में एक बार आपका हेल्थ चेकअप बेसिक जरूर होना चाहिए, और उसमें से कई बार क्या होता है कि हम चेक करते हैं ESR CRP हाई है, लोग बोलते हैं ऐसे हाई हो, ऐसे न छोड़। अगर कोई एबनॉर्मल ब्लड रिपोर्ट आती है, वो ESR ही हो सकता है, CRP हो सकता है, काउंट्स हो सकता है, उसको इग्नोर मत करिए, गेट इट ओपाइंड बाय सम एक्सपर्ट, एटलीस्ट 2 एक्सपर्ट कि इट इज एबनॉर्मल। क्योंकि कई ऐसे लोगों को मैं पहचानता हूँ, जैसे हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं, उस फैमिली में ऐसा हुआ कि उनकी वाइफ को मैंने पैंक्रियाटिक कैंसर और TB जस्ट बेस्ड ऑन वन रिपोर्ट डायग्नोज किया, शी गॉट क्योर्ड। हिज फादर was having high ESR and was treated by diabetologist. The diabetologist said, no, ESR is high, it's okay. I said, no, get a ultrasound done. He just did ESR, he said ESR 1 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ. By the time it was late, the pancreatic cancer has spread and he died within 6 months. Example, I'm not trying to, मैं आप लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल कि जो कुछ ब्लड रिपोर्ट कराएं, अगर एबनॉर्मल आए तो गेट इट ओपाइंड बाय राइट पर्सन, at least expert who can tell you this something else has to be done. कई बार हम लोग लगता है ठीक है हम टेस्ट नहीं, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं ठीक है साहब एबनॉर्मल टेस्ट है, टेस्ट ही नहीं कराना है, तो शुतुरमुर्ग बन के तो काम नहीं हो सकता। ऐसा लगता है शुतुरमुर्ग को हमने सर के अंदर डाल दिया उसमें तो तूफान चला गया, ऐसा नहीं होता। इट्स गोइंग टू हैपन, वी कैन नॉट हाइड अवे फ्रॉम प्रॉब्लम, वी कैन फेस इट, क्योर इट, बट वी कैन नॉट डू विदाउट इट। द सेकेंड थिंग इज regular health checkup, which is very important. If you are 50 plus, at least once in a year a blood test, and if you have some family history, अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर की हिस्ट्री है, टेस्ट कर लीजिए। अगर आप स्मोकर हैं तो अपने लंग का टेस्ट रेगुलर करिए, आपको अगर डायबिटीज है तो एटलीस्ट हार्ट का, ब्रेन का और किडनी का टेस्ट रेगुलर करते रहिए एवरी 3 ईयर, तो एटलीस्ट यू नो कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। क्योंकि एक क्या होता है, भगवान ने हमारे आर्गन्स में हम 1/4 किडनी पे काम कर सकते हैं, बट 2 किडनी दी है। आधे लंग में हमारा जिंदगी चल सकता है, बट 2 लंग्स दिए हैं, ठीक है। हार्ट के 3 वेसल्स दिए हैं, उसके कोलेट्रल दिए हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हम देखते हैं जिनके तीनों नली 100% ब्लॉक होती है, फिर भी आदमी को कोई सिम्टम नहीं होता, बच जाता है, बिकॉज हमारी बॉडी की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तो एक्सरसाइज बताने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ा रहे होते हैं। बाय द टाइम कोई अगर इंसल्ट होता है तो उस समय उसको पकड़ ले, बट वो भी आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जो अचानक होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो रेगुलर स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू डू इट यू कैन पिक द प्रॉब्लम मच बिफोर देन इट हिट्स यू, मच बिफोर देन इट आपको ऐसा हिट करे कि आपकी लाइफ पे बन जाए, उसके पहले आप पकड़ सकते। दैट वाज द सेकंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 60 साल के बाद अगर कोई एक चीज़ है जो बहुत से लोगों की, एल्डरली लोगों की, आई एम श्योर कि इतने लोग बैठे हैं इनमें किसी न किसी के फादर या मदर की बाथरूम में गिरकर हिप फ्रैक्चर हुआ होगा, हेड इंजरी हुई होगी, और कुछ लोग को आप इसलिए नहीं बचा पाए होंगे कि उन्होंने अंदर से बाथरूम बंद कर लिया होगा। आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग, एंड इन वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज 100% प्रिवेंटेबल थिंग। कैसे? जैसे आपकी फीमेल आप है, मीनोपॉज हो गया, तब आपको बोन का ध्यान रखना है, और मेल है तो 60 प्लस, एटलीस्ट आप अपना कैल्शियम और विटामिन D3 मेंटेन करिए। 5 साल में बोन का एक टेस्ट कर लीजिए जो बताता है कि आपको बोन वीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसका आगे का ट्रीटमेंट है। ये तो मेडिकल पार्ट हो गई, बट व्हाट एवरीबडी शुड डू इन देयर हाउस, विच इज रिटन देयर, दैट जिस भी बाथरूम में एल्डरली लोग यूज करते हैं उसमें एंटी स्किड सिस्टम और होल्डिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसको कि साइड रेलिंग बोलते हैं, और फर्श जो होना चाहिए एंटी स्किड कि आपका पैर स्लिप ना करे। अगर इतनी सिंपल सी चीज है, पहली बात तो आप गिरेंगे नहीं, अगर गिरेंगे तो आप पकड़ लेंगे तो आपको सर नहीं टूटेगा और हिप नहीं टूटेगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं। हिप जॉइंट फ्रैक्चर हुआ इस एज में 70 प्लस में और सर में चोट लगी तो दोनों फेटल होती है।
25% people dies because of this. And it is like that कि आप अभी गए बाथरूम में गए और बाहर ही नहीं निकले, और एक एज के बाद अगर आपके पेरेंट्स हैं और आप खुद हैं तो आपके अंदर के बाथरूम की शिटकनी लगाना बंद कर दीजिए. बहुत सिंपल सी बात है. But I know in my this small life at least 10 people who died inside bathroom because bathroom could not be opened in time. It was so tightly latched. And repeatedly we tell people, please, if it is there, remove it. Don't lock from inside. Keep it. अगर आपको सर उसकी बात है तो आप आजकल तो मैग्नेट के आते हैं कि जैसे पकड़ लेते हैं जिससे आप खुल सके, आप रख दीजिए. And everybody has their privacy. Even not privacy there. There can be some other system for indication. You can, अगर आपको लगता है आपका स्लीपर बाहर रख दीजिए, सबको मालूम होना चाहिए कि आप अंदर हो. जैसे there way to pray, but don't lock inside. And अगर आपके घर में एक ही बाथरूम है तो जैसे आपने बाथरूम और वॉशरूम बनाए हैं उसमें आप होल्डिंग सिस्टम और टाइल्स एंटी स्किड जरूर लगाइए. ये आपको बहुत शायद एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा मुझे मालूम नहीं, बट कई लाखों के पैसे बचाएंगे आपके और साथ में आपकी जान भी बचाएगी. और डेफिनेटली हम सब विटामिन D3 डेफिसिट हैं, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज हमें अब हम सन का एक्सपोजर नहीं होता है. इसलिए आइडियली आई एडवाइज एवरीबडी टू एवरी मंथ एटलीस्ट 1 विटामिन D टैबलेट 60,000. अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं आप में से अगर मैं सबका विटामिन जिसको ले रहे हैं अलग बात करूं तो 9 out of 10 people will have vitamin D3 deficiency in India. So once in a month if you are taking, this will keep your bone healthy, prevent you from very, and 60 plus I tell you after cancer and heart attack is a major killer and disable. अगर आप बच भी गए तो आपका फ्रैक्चर, ट्रीटमेंट, बेड रिडन, बेड शोर, इन्फेक्शन, अगर आप एक्यूट प्रॉब्लम से बन गए तो क्रॉनिक प्रॉब्लम मंथ्स तक चलती है. और ये जो फ्रैक्चर होती है ये बोन जल्दी हील नहीं करती है क्योंकि बोन्स अंदर से पोपली हो गई है, वीक हो गई जिसको बोलते हैं. इट इज बिकम लाइक पोरस. So don't allow your bone to get porous. Treat it, take it proper calcium, take it vitamin D3 and prevent the fracture. Yeah, every month 60,000. 60,000. 60,000, one tablet, sachet, liquid, everything comes. 1 month, once in a month. Now vaccine. अब मुझे मालूम है लोगों के वैक्सीन के बारे में बहुत सारे थॉट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आइडियाज़ हैं, नहीं है. अगर आप 80s और 90s और 70s का इंडिया याद करें तो लोगों के बच्चों के नाम इस तरह रखे जाते थे कि पैदा होने के बाद बच्चे मर जाते थे तो ऐसे नाम रखते थे कि शायद नाम से बच जाए. देयर वर सम कॉमन डिजीज, पोलियो पैंडमिक थी, फ्लू पैंडमिक थी, चिकन पॉक्स था, मम्स था, रुबेला था. ये सब डिजीज बच्चों को मार डालती थी बिकॉज इम्यूनिटी नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी. एंड देन बेसिक वैक्सीन केम एंड द चाइल्ड सर्वाइवल इम्प्रूव अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ दोज डिजीजेज आर ऑलमोस्ट इलिमिनेटेड. हम जब पैदा होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी नहीं होती है जब तक हम इन्वायरमेंट. इम्यूनिटी आती कहाँ से? जब तक हम इम्यूनिटी इज लाइक दैट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी that will only happen, our system will only develop when we are exposed to. Sir, जब भी मुझे बंद करना बता दीजिएगा because on this topic I can talk for hours. So you have to tell I have to stop, I will stop because I want to complete whatever section I am taking. So sorry for that. So immunity का ऐसा सिस्टम है कि आपकी बॉडी को जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा तब तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगा. एक सिंपल थॉट है. हालांकि इम्यूनिटी इटसेल्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग डेज एंड मंथ से बात करते हैं तो एक शब्द में नहीं, बट एक शब्द में समरी इतनी है कि आपकी बॉडी को किसी रोग से फाइट करने के लिए आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होने चाहिए. वो बनते हैं जब माइक्रो, नैनो और अल्ट्रा नैनो डोज में वो वायरस, बैक्टीरिया हमको एक्सपोज करते हैं और एंटीबॉडी बनते हैं और हमारी बॉडी उसको रिमेंबर रखती है. नेक्स्ट टाइम जब वो डोज ज़्यादा डोज में आता है तो वो बॉडी एंटीबॉडी वायरस बैक्टीरिया को पकड़ लेती है, किल कर देती है और हमें रोग नहीं होता. दैट्स हाउ वी आर प्रोटेक्टेड. अदरवाइज वी आर एवरी मिनट, एवरी सेकेंड वी आर एक्सपोज, बट वी आर प्रोटेक्टेड बिकॉज आवर बॉडी हैज दिस डिफेंस सिस्टम. बट द फ्लॉज ऑफ दिस सिस्टम इज आफ्टर 60, until unless you are diabetic, you have cancer, you are taking chemotherapy or you have transplant, that's different. In routine,
The moment you become 55 plus, 65 plus, this immune system starts again forgetting this exposure, and you again become susceptible for the some common infection which happens daily to daily. The phenomena is called, you don't need to know, but somebody wants to know, technical term is called immune senescence, जिसमें कि हमारी इम्यून सिस्टम सेंस नहीं कर पाता है एक्सपोजर को. तो सिंपल सी बात यह है कि जो कॉमन इन्फेक्शन है, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, टेटनस है, जो एक WHO की रिकमेंडेशन है बेसिक, जो कि एक रूटीन है, हर्पीस है, तो इनके वैक्सीनेशन, एक सिंपल वर्ड याद रहे जाए, ज़्यादा आपको नहीं, कि एडल्ट वैक्सीनेशन 60 प्लस अगर आप हैं तो आपको कंप्लीट करना चाहिए, अगर अनदर 30 इयर्स आप इन कॉमन डिजीज से लड़ना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि वैक्सीन से आप पूरा प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बट अगर ये होगी तो बहुत माइल्ड होगी, या ओपीडी के ट्रीटमेंट में आप ठीक हो जाएंगे, इसके लिए एडमिट नहीं होना पड़ेगा. आज की तारीख में अगर आपको लंग का इन्फेक्शन हो जाए और आईसीयू में आपको एडमिट होना पड़े और 10 दिन किसी अच्छे हॉस्पिटल में रहते हैं, तो यू शुड एक्सपेक्ट यू विल बी स्पेंडिंग 10 लाख प्लस on ICU. In place here, thus the cost of this vaccine is negligible, and there is a standard WHO advisory that these are the vaccinations anybody above 60 should take. बट मैं सर आऊँगा आपको, कुछ मैं कंप्लीट करके सेंटेंस. बट अगर आपको कैंसर है, कीमोथेरेपी लिया है, या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, स्टेरॉयड ले रहे हैं, या आपका लंग, किडनी, हार्ट, कोई आर्गन खराब है, तो कोई भी एज हो, एक बार ये वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, जिससे इस इन्फेक्शन से आपको और प्रॉब्लम नहीं हो और बेसिक डिजीज मेंटेन रहे. बहुत से लोगों का लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब होती है, क्रॉनिक जिसको बोलते हैं, उसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं, हार्ट वीक हो जाता है, लंग्स वीक हो जाते हैं, या गठिया हो जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहे होते हैं. तो ऐसी कंडीशन है तो आपको वैक्सीनेशन लें. सर कुछ पूछ रहे थे आप? Yes, it is there. That's why I am saying, that's why I explain, I took a lot of time and explain. Mahendra Bhai is fully vaccinated for everything. So if you go to right kind of physician, right kind of hospital, and even if you go to WHO directory, so it says that these are the vaccine any adult should take. Now, unfortunately, general practitioners do not have much idea about that. Physician will have some idea that, now, because now is being educated. So most of the physician will know, not every physician, most of the good hospital will know. प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को थॉट ऐसा है कि वैक्सीन से हमें नुकसान हो सकता है. तो वैक्सीन का थॉट इतना डेवलप इसलिए नहीं हुआ कि वैक्सीन इज प्रिवेंटेबल. एंड समटाइम ये होता है कि लोगों का एक हिडन ये भी होता है कि अगर हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे तो कॉमन प्रॉब्लम के साथ पेशेंट नहीं आएगा. तो समटाइम ये भी थॉट एक होता है विच इज रॉन्ग, बट इट इज देयर. बट आई डोंट वांट टू से दैट, बट दिस कॉन्सेप्ट इज देयर, एंड एटलीस्ट ऑल द डेवलप वर्ल्ड, बिकॉज वहाँ पे लोगों को पैसा ट्रीटमेंट के लिए स्टेट को पे करना होता है. तो इट इज, आप आज यूएस सिटीजन हो, यूरोपियन सिटीजन हो, ऑस्ट्रेलिया सिटीजन हो, या जितने भी डेवलप वर्ल्ड है, तो वहाँ पे बिल्कुल रियल, आप 50 पे इंटर किए हर्पीज वैक्सीन, आदमी आके ठोक जाएगा आपको करना नहीं है, स्टेट का आदमी आके लगा जाएगा आपको 2 डोज कंपलसरी उसके बिना, क्योंकि अगर आपको हर्पीज हुई तो उसका पूरा पैसा स्टेट को देना पड़ेगा. तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर है, जहाँ पे 1 रुपये, मतलब आपके इकोनॉमी की भाषा में बोलूँ, 1 रुपये लगा के आप सामने लाख रुपए बचाते हो. एंड दिस इन्वेस्टमेंट आर मस्ट, एवरीबडी शुड डू, एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल. Nowadays everybody does, all corporate hospital will be doing, all good physician will do. If they do not know, you don't need to know, you just need to remember adult vaccination program. चैट जीपीटी से लेके गूगल से लेके किसी से भी पूछेंगे, वो बता देगा कि क्या क्या करनी होती है. बट व्हाट वी रिकमेंड कि जो फ्लू हर साल होता है लेना चाहिए. निमोनिया की वैक्सीन एक बार लेते हैं फिर आपको अगले लाइफ टाइम हो जाती है. देर आर वैक्सीन विच कम्स इन द नेम ऑफ टिटनेस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, कल टीडैप, एक बार लेते हैं 10 साल के लिए होते हैं. हेपेटाइटिस बी आपको लेना चाहिए, बिकॉज बहुत कॉमन है कम्युनिटी में हेपेटाइटिस ए एंड हर्पीस. अमिताभ बच्चन ने एटलीस्ट हर्पीस का कॉन्सेप्ट कर दिया, सबको मालूम चल गया कि हर्पीस क्या है. और हर्पीस इतनी ही खराब है, जानलेवा इमीडिएट आपके लिए नहीं है, हो सकती है जिनको कैंसर हो या लंग की प्रॉब्लम हो उसके लिए, बट इन जनरल सबके लिए नहीं. बट हर्पीस एक बार हो जाता है जिसको, तो एंटीवायरल पहली बात तो काम नहीं करती.
ऐसा लाइफ इलेक्ट्रिक शॉकिंग पेन होता है और वो पेन सालों साल चलता है। अगर आपके फैमिली में किसी को हर्पीस हुआ हो चेहरे पे या छाती के ऊपर, तो सालों सालों बेचारा कंप्लेन करता है। आप न्यूरो फिजिशियन से लेके सबके पास जाते रहते हो, दवा लेते रहते हो, बट पेन कभी रिलीफ नहीं होता है। तो इट्स अ लाइफ टाइम डिसेबिलिटी विच one suffers if you have herpes, so that can be prevented. So adult vaccination program, अगर इतना वर्ड आपको याद रह जाता है तो that's more than enough. अगर इतना भी नहीं आता है तो vaccination program for you don't need to remember which vaccination. Anybody will walk in, they will tell you कि भाई आपकी एज क्या है, उसकी कैटेगरी में आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या क्या वैक्सीनेशन आती है, this is that you can determine and it's freely available. So that's another thing if you want to age healthy, prevent problem, because each time you have lung infection आपकी बॉडी की कैपेसिटी, स्टेमिना, डिसेबिलिटी कम होती है, प्रॉब्लम कम होती है और आप की एजिंग फास्ट होती है और आपकी टोटल आयु जो बेसिकली एजिंग में अगर मैं नॉर्मल प्रोसेस करूँ तो क्या है कि हमारे जो हेल्दी सेल है उनकी डेथ होती जाती है, जो हम समझते हैं साइंस में। आई एम नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट रिलीजन अंडरस्टैंड, एज ए डॉक्टर व्हाट वी अंडरस्टैंड एजिंग मीन्स द सेल अल्टीमेटली इज अ सेल which dies and then you die out. So unko each time they get exposed, they are getting hit, then you have less number of active cell, less number of neuron, and you have a problem. So this can be prevented or delayed or reduced if you take proper vaccination. Then comes the medicine. Most of us, जैसे ही हमारा 55 की साल होती है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई, 4, 5, 6, 7, 8 मेडिसिन लेते रहते हैं, फिर 6 महीने साल में डॉक्टर को दिखाते हैं। मेडिसिन लेना ठीक है, बट जब आप मेडिसिन लेते हैं ना तो खाली इतना चेंज कर लीजिए अब जो समय है कि डॉक्टर से पूछिए कि सर इसका क्या गोल है, मेडिसिन का, ये मेडिसिन ले रहे हैं इसका क्या गोल है, क्या पर्पज़ है। एंटा एसिड तो लोगों को हर एक को एक लाइफ बाउंड हो जाता है, मल्टीविटामिन सबको लिख दिया जाता है। Everybody doesn't need multivitamin or anti-acid. If needed, you take. Even antihypertensive also. Again, I tell you कि जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं, जैसे आपके खाने की रिक्वायरमेंट कम होती है ना, मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट कम होती है, एंड हैज टू बी रिड्यूस। हार्ट की मेडिसिन के लिए इकोस्प्रिन क्लोपेडोल चालू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर लेना है आपको, एक समय के बाद कम करके बंद भी करना है। माई फादर इज 82, वेरी हेल्दी, मोर हेल्दियर देन मी. He had, more healthier than me, and he had a heart attack. He said, I have some problem. I was delivering a talk somewhere in Gorakhpur. I had gone. I said, okay, come. He lied down on lab, 2 arterial block. Doctor called me. I said, his heart rate was 60. He was surprised. He said, I don't need to give any medicine. He just opened, and then 3 months of ecosprin, and then we stopped everything, because after they started complaining of epigastric pain because of ecosprin. कितने सारे कार्डियक पेशेंट हम देखते हैं, दे डू नॉट डाई बिकॉज ऑफ द हार्ट, आफ्टर हार्ट बिकॉज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम, दे हैव प्रॉब्लम और हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ GI bleed. They have low hemoglobin, they start passing stool in blood, but nobody stopped that. कि एक बार आपको हार्ट अटैक आ गया तो स्टंट के लिए जिंदगी भर इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्राल लेने की जरूरत नहीं होती है. दैट लिटरेचर सेज. सो समवेयर डाउन द लाइन पर्पज ये है कि आपको डॉक्टर से बोलना है कि सर क्या क्या मेडिसिन है इसमें हम बंद कर सकते हैं, बिकॉज polypharmacy will again cause problem. Yes, sir. अगेन सर, अगर आपकी 60, 70 प्लस एज है, द एविडेंस की बात करें, अगर आपको कोई एक्टिव प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली फर्स्ट यू कैन रिड्यूस इकोस्प्रिन. अगर इफ दे डोंट डिसाइड देन यू हैव टू सम टाइम, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम ट्रिगरिंग योर थॉट कि यू नीड टू रीड. आजकल तो क्या हो गया ना कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत इन अ वे AI हैज डन लॉट ऑफ गुड थिंग, बिकॉज AI आंसर यू प्रॉपरली इफ यू आस्क प्रॉपर. इट्स लाइक garbage in, garbage out. If you put right thing, it gives you right thing. So you ask ChatGPT, I have this problem, I am taking ecosprin. How long I need to take ecosprin? If you put this, it will analyze all the available literature in ecosprin across the world in current time and tell you
कि this is your condition, if you do not have this problem, you need to take this much of equipment, after this you need to stop. मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको कि आप ही नहीं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है. दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन कि वी आर ऑन पॉलीफार्मेसी, बट द reality that, and that's why many time when patient, sir aunga, I will come to you once I come in. So many time when doctor come to us, they talk to us, patient come to us, many time they come to us for complication because of the certain medication, and we just reduce or stop the medication and he is all right. He has been going to so many times. So ऐसा नहीं है, but if somebody thinks it, because अगेन ये माइंड सेट चेंज होना है पेशेंट का. कई बार पेशेंट ही बोलता है कि साहब दवा चालू रखे, कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि दवा चालू रखे, बिकॉज कन्वीनियंस है. बिकॉज बट टाइम हैज कम, बिकॉज इंडिया हैज नॉट सीन people above 70 plus that much 10 years before, which nowadays we are seeing. Now it has become very common that in our clinic, in our ICU, 70 plus 80 plus people are coming, getting treated and going home. But lot of patients have problem because of medication. Because एक चीज और भी है, जो हम ट्रायल देखते हैं वो सारे ट्रायल्स ह्यूमन बीइंग में 60 प्लस या उसके पहले के लोगों में होते हैं. हम मेडिसिन जिनको दे रहे होते हैं उनकी एज 70 होती है, 80 होती है, 9. तो वहाँ पे डॉक्टर के एक्सपीरियंस की बात होती है, थॉट की बात होती है. एंड दैट इज द रीजन मेनी टाइम योर फिजिशियन कैन डू मच बेटर जॉब, योर जीपी कैन डू मच बेटर जॉब देन व्हाट सुपर स्पेशलिस्ट इज डूइंग. एंड दैट इज द रीजन दिस काइंड ऑफ, बिकॉज अगर सब कुछ अच्छा होता तो नई चीज़ें नहीं आती. मेडिसिन में एआई इसीलिए आ रही है बिकॉज वी डू लॉट ऑफ थिंग्स विच वी शुड नॉट बी डूइंग, and we don't do many things which we should be doing. So ultimately things are going to get better. ATM आया तो लोगों को लगा नहीं था ATM आएगा सबके, बट ATM ने आज तो मोबाइल मनी आ गई, तो हाउ लाइफ हैज बिकम इजी. सो वॉट एवर, सो जस्ट चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं. हमारे माइंड सेट को चेंज करना है कि साहब आपको 10 मेडिसिन, एक्यूट कंडीशन में 10 मेडिसिन की जरूरत थी, 5 की जरूरत थी, बट 6 महीने. वैसे बहुत से मेरे पेशेंट होते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि आई एम नॉट ए कार्डियोलॉजिस्ट बट दे डू, they start this many, after 3 months I'll call and tell कि I'm stopping this, हाँ बंद, तब they will say okay you can stop it. उनके पास कोई जाएगा तो इन जनरल ओके जो चल रहा है ठीक है, चलने दो ना पेशेंट, ठीक है. तो somehow समय ऐसा आ गया है कि अब डॉक्टर के पास, किसी के पास भी जाए तो आपको बोलना था कि सर इतने में, महेंद्र भाई हर बार आते हैं 2 महीने में, साहब कितनी मेडिसिन कम कर सकते हो मेरे को. फिर मैं उसमें से देखता हूँ अच्छा अभी 4 3 2. तो when he asks, I think okay कहीं मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, because he is well read, he is concerned about health, he still wants to have another 10 year walking around the world. So that's a perfect example. Sir कुछ पूछ रहे थे आप? Sir, as far as bypass is concerned, when we do bypass, अगेन सबके प्रोटोकॉल अलग होते हैं. कुछ लोग 75 मिलीग्राम इकोस्प्रिन देते हैं, कुछ आइडियल क्या होना चाहिए. Once you have taken it for 1 year, you need to reassess you really need to take medicine or not. As I said, in my father, I stopped ecosprin after 6 months because I knew it's not needed. Fact, science, that's what tell us. Baki one can say. As far as plasty is concerned, their stunt blockage 1 year tak risk is very high. Up to 1 year, 2 antiplatelet drugs are needed. After 1 year, it depends upon which one you want to give. But once you become 70 plus, and you have like kidney problem, liver problem, everything is, there is no problem, 150 milligram ecosprin carry on. But the moment you have kidney problem or liver problem, you need to reduce the medicine. Many of the patients I know who has problem because of 150 milligram ecosprin, 75 milligram ecosprin, who are in 80, and then we have to reduce the ecosprin to 37 milligram, half the dose. So same prescription, and all these, I tell you, again the word is dividing between clinician and technician. All these people who are really very good in doing technical procedure, they are not that good clinician, I can tell you very clearly. Our physician may be very good
clinician than any super specialist. So I'm not challenging anybody, not saying anybody, just I'm trying to bring your attention, because this is a controversial area. I'm on to believe. Just want to bring your attention that polypharmacy in elderly is not good. Many times your ulcer sensorium, GI related problems are because of polypharmacy. Each time when you visit your doctor, ask, can you reduce some of medicine if not needed? Because each time he is testing you, each time he is seeing your progress. CTOL is not, if somebody and you are saying, okay, sab theek hai, chalte raho. It means either you were not needed to go to the doctor or there is something. So that one mindset, when as a demanding patient you will have, then doctor will also think, okay, it's a different patient and I have to really think seriously, something I can reduce. So that's what thought I want to do. Yes, sir. With clopidogrel? Sir, whenever you are taking antiplatelet and particularly taking antiplatelet at the moment you become 70 plus, GI bleed risk increases very high. As far as retina bleeding is concerned or brain bleeding is concerned, that is not directly related with double antiplatelet drug. But if you are taking any other anticoagulant or you have a renal problem, then that can cause. So it all depends upon how much risk factor. That's why I said the safety is to after 1 year or maximum 2 years, you should come down to one antiplatelet drug. If you are on cardiac procedure, it can be ecosprin or clopidogrel, but we never advise that you continue for lifetime double antiplatelet drug. That we never. Neither any trial, neither science does. It can be convenience of the things, but even for preventive also, for preventing the second time this problem should not happen. 75 150 mg ecosprin or clopidogrel is okay until unless you are high risk. High risk patients are different, but routine patient, this is enough. So that's why I said in one go we cannot take. I am just leaving you with one thought. I am not advising you like doctor. I am just advising like that one thought. Every time you visit your doctor, you ask, sir, can we reduce some medicine? That's it. If nothing can be done, there is a strong reasoning and science behind it, is fine. But if you ask, you will find after 6 months, 2 of your medicine will take. My otherwise brother, I am also treated because I see whole family. When he came to me with 37 medicine. 37 medicine, and he has never relieved of his headache for 5 years. Today he is on 15 medicine and lot of things has gone. Definitely we have done many other things. That another source, if you are treating the cause properly and if you have found the cause properly, things can be reduced. So basically I don't want to again go in the technical detail. Very simple word, like I said, adult vaccination. I am leaving with a word that polypharmacy should be reduced to less of the medication. Now, okay. So if you have too many medicine, you will be like the gentleman, and if you have one medicine, you will be like lady. You have to decide what you want. Yes, sir, please. Yes. So again that is also एक problem क्या है हमारे यहाँ इंडिया में कि most of the time you are visiting people who are very busy and you also are in hurry, you also want that you go to doctor, he writes me quick prescription, I go, neither you ask, neither he is ready to that. But that's not how medicine works. For each patient at least they need 15-20 minute time. When you write prescription, you explain the medicine, you explain what is taking, for what you are taking, if you have some problem, what you should do. All these things should be explained and educated. And then you, as I said, that is very important. But since you don't ask, they don't reply. जैसे राजा वैसे प्रजा, या आजकल ये हो गया जैसी प्रजा वैसा राजा, तो जैसा मरीज वैसा डॉक्टर. जी 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 सर, मैं मेडिकल नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं मेडिकल डिस्कस करने लगा ना तो फिर तो बात कहीं और चली जाएगी, फिर ये टॉपिक रह जाएगा.
कभी उसके बारे में, अगर मेडिसिन की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना कभी बात करेंगे। आज मुझे इसको खत्म करने दीजिए, ठीक है? बट आई विल रिप्लाई सम टाइम ऑन, और यू कैन जस्ट राइट टू मी मैसेज, आई विल एनी क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई यू विथ एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी। Now coming to the most important thing, brain and emotional health. What happen as we grow older? We think our brain is shrinking. We think that याददाश्त चली गई. We think that हमें ये हो रहा है, हम भूल रहे हैं. I tell you, brain भी जैसे मसल्स है वैसे ही ब्रेन है. अगर आप ब्रेन को यूज नहीं करोगे तो न्यूरॉन्स डेथ होते जाएंगे, आप भूलते जाओगे. अगर इस दुनिया का सबसे सुंदर गिफ्ट मैं बोलूं जो भगवान ने हमें दिया है हमारे शरीर में, तो वो है भूलने की कला. अगर हमें भूलना नहीं आता तो हम जिंदगी में एक दिन भी नहीं चल पाते. सोच सोच के मर जाते कि कल मेरे साथ ये हुआ, हमारे फादर मर गए, मदर मर गए, बच्चा हो गया, इसको ये हुआ, मुझे इसने ये बोल दिया. So you should be thankful to God that He has given us the biggest gift, that we forget the things. Okay? So भूलने को गलत मत लीजिए, इसको लीजिए ब्लेसिंग की तरह. Now coming to the brain and emotional health. जैसे जैसे आप एज होते जाते हो, आपका इमोशनल कंस्टेंट बढ़ता जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, और वहीं से प्रॉब्लम होती जाती है. हर आदमी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. बट मेंटली अगर आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. हम आज जो भी कर रहे हैं, हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता अगर हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है. हम एक कदम चल भी नहीं सकते अगर हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है. और ब्रेन तभी एक्टिव होगा जब आप ब्रेन को चैलेंज करेंगे. तो आप जो कुछ भी काम करते हो, आप जिस भी फील्ड में हो, पहली बात तो उसको छोड़िए मत. पढ़ना और ब्रेन को चैलेंज करना, जैसे मसल को चैलेंज करना 30 मिनट इंपॉर्टेंट है, वैसे ब्रेन को भी एटलीस्ट 30 मिनट चैलेंज करना इंपॉर्टेंट है. कोई भी नई चीज सीखिए, किसी भी एज में सीखिए, कोई उम्र नहीं होती. वो आपके ब्रेन को चैलेंज करेगा और ब्रेन को एक्टिव रखेगा. तो जो लोग 50-55 साल के बाद एज रिलेटेड सेनाइल होने लगते हैं, या एज रिलेटेड चीजें ब्रेन को होने लगती हैं, जिसमें आप भूलने लगते हैं, स्लो होने लगते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, दिस हार्डली हैपन बिकॉज वी स्टॉप चैलेंजिंग. 60 साल तक उम्र तक हम सरकारी नौकरी या कोई जॉब कर रहे थे, वहाँ रोज चैलेंज थे, तो ब्रेन फुल एक्टिव था. नेक्स्ट डे आप रिटायर हो गए, इसके बाद अब हम आराम करेंगे, और 3 महीने बाद आपका ब्रेन इतना सुस्त हो जाता है कि ब्रेन के न्यूरॉन, एंड एट दैट एज जब 60-55 साल के बाद, 70 साल के बाद जब ब्रेन डैमेज होता है, स्लो होता है, या न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, तो फिर उसको रिकवर नहीं कर सकते, उसको आपको चैलेंज नहीं कर सकते. तो सिंपल चीज ये है सर कि आपकी ब्रेन को चैलेंज करना है, और ब्रेन की खुराक है चैलेंज, इंटेलेक्चुअल चैलेंज. कुछ भी नया सीखेंगे तो ब्रेन के न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा. इट कैन बी एनीथिंग, आई कैन नॉट स्पेसिफाई. इट कैन बी लिसनिंग, रीडिंग, इवन लर्निंग स्विमिंग, कुछ भी, म्यूजिक, जो आप पसंद करते, जो आज तक नहीं कर पाए. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि लाइक कुछ ना कुछ आप अपने बॉडी को चैलेंज करते रहिए, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा. इन जनरल, until unless you have some medical problem, that's a different issue. बट जो एज रिलेटेड चीज है उसको आप डिले या कम कर सकते हैं इस तरह. और जहां पे भी लोग हेल्दी एज हैं, पर्टिकुलरली जापान का बार बार एग्जाम्पल आता है, उसका रीजन क्या है? लोग एक सर्टेन एज के बाद उसके लिए काम करते हैं. अगर वो जमीन पे नहीं चल पाते हैं तो पानी में चलना शुरू करते हैं. दैट्स फैक्ट. अगर वो नहीं दौड़ सकते हैं तो तैरना शुरू कर देते हैं. But they keep themselves active and engaged, and that's how even up to 80-90 they are mentally absolutely, up to 100, up to they die, most of them are active, mentally active, and that is the reason, because they are challenging themselves. कोई भी बैड हैबिट छोड़ने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो सर अल्कोहल हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे कुछ भी हो. ऐसी कोई, आप जब यंग हैं तो आपके लंग्स की बहुत कैपेसिटी है, वो स्मोक ले सकता है. बट एक जैसे जैसे एज होती जाती है, लंग, बॉडी की सभी सेल्स की डेथ होती है, लंग्स की भी होती है. उस समय आप स्मोक करेंगे तो फिर आपको लंग्स की प्रॉब्लम होंगी, बार बार मेडिसिन लेना पड़ेगा, सांस फूलेगी. और जिस दिन आप वो इंसल्ट छोड़ देंगे, वो स्मोक छोड़ देंगे, अल्कोहल छोड़ देंगे, तो लिवर और लंग दोनों आपको धन्यवाद देंगे, बिकॉज आपने उनको कैपेसिटी. इट्स लाइक दैट कि आपके पास 2 रुपए है, 2 रुपए में जिंदगी चल सकती है, बट आपको 10 रुपए की जरूरत हो तो 2 रुपए 10 रुपए में तो नहीं कन्वर्ट होगा, फिर तो आप तो निगेटिव में हो जाओगे. सेम वे
आपके लोग बोलते हैं अचानक सर सब कुछ तो अच्छा था आज तक, मेरा लंग कैसे खराब हो गया, एक दिन में वेंटिलेटर पे कैसे आ गया, आज तक सब अच्छा तो था, ऐसा क्या हो गया कि मेरा लीवर खराब हो गया, मैं कोमा में चला। अच्छा कुछ नहीं था। एक घड़े में आप पानी भरते जाइए, पानी की वो ड्रॉप जो गिरना है घड़े से बाहर वो तो एक ही है ना, और वो कब होगी, जब घड़ा पूरा लबालब भर जाएगा। बस जिंदगी का यही फलसफा है सर, चाहे वो किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो। भगवान ने हमें इनॉर्मस कैपेसिटी दी है इंसल्ट को सहने, टॉलरेट करने, कंपनसेट करने को, जिसको हम कंपनसेशन बोलते हैं। बट वो कंपनसेशन से डीकंपनसेशन की प्रोसेस एक ड्रॉप के बराबर है। एक ड्रॉप के पहले हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और जब वो एक ड्रॉप छलकती है तो हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया। हमें क्योंकि फ्री में जो चीज मिल गई उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। जिस दिन हमें ऑक्सीजन रोज खरीद के लेना पड़ता है तब मालूम पड़ता है कि कुदरत ने हमें क्या दिया है। तो जो आपको भगवान ने इतनी अच्छी चीजें दी है ना, उसकी वैल्यू करना पड़ता है। एटलीस्ट स्मोक, occasional alcohol is fine, but smoke is not good for your lung. At least once you are 50 plus, smoke is not at all. फिर आपको जिंदगी भर पंप पे रहना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे रहना पड़ेगा, बाईपैप पे रहना पड़ेगा, और ब्रेथलेसनेस से खराब आपकी सांस बैठे बैठे फूल ले, उससे खराब कोई फीलिंग नहीं हो सकती जब तक आप मर सकते हैं। आप इतना दूर दौड़ के आते, सांस फूल जाती है, ऐसा लगता है क्या हो गया। और आप सोचो कोई आदमी बैठा और सांस फूल रहा हो तो क्या कंडीशन होगी। सो द डे यू विल leave it, quit it, it will start recovering. Again, God has given you capacity. The moment you stop insult, things start recovering. Recovery slow होगी, but recovery होगी. So this is another thing, that if you want to really grow, age gracefully, if you smoke, if you drink means heavy drinking. I'm not talking about social drinking. If you are taking 30 ml per day, it's okay. 60 ml per day for anybody is like medicine, but 90 ml not. It's like that. So if you're taking too much of food, is poison. If you're taking food like medicine, is good. But if you're taking medicine, anything you are taking in excess is poison. It can be food, it can be water, it can be anything. Then, if you are healthy, if you are having sound mind, if you can think, आपने तो 60 साल 70 साल 80 साल की दुनिया देखी है, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। उस एक्सपीरियंस को आपको किसी को तो देना है ना। अपने खुशी के लिए वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, आपके पास पड़ोस को दे सकते हैं, सोशल वर्किंग कर सकते हैं। अगेन आई टेल यू, इतने धन्ना सेट हुए दुनिया में, इतने लोग हुए दुनिया, बट अगर आप किसी को याद करते हो कि जिसके पास पैसा था, तो किसको याद करते हो पूरी हिस्ट्री में? एक उसने जिसने महाराणा प्रताप को डोनेट किया था, क्या नाम था? मोहम्मद शाह। देने वाले तो बहुत सारे हैं। आज के जमाने में देने की बात आती है, सर नथिंग पर्सनल, तो लोग टाटा की बात करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन गिविंग। तो एट द एंड ऑफ द डे हम कितना भी ले जाएं, नोबडी रिमेंबर्स। रिमेंबर तभी होगा जब आप देना शुरू, वो आप ज्ञान दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट आपके लेने या रखने से कोई आपको रिमेंबर नहीं करेगा। रिमेंबर तो आपको तभी कोई करेगा जब आप दोगे। तो जो आपके पास है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आप लोगों को खुशी दे सकते हो, स्माइल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पैसे दो। तो वो तभी आप कर सकते हो जब आप हेल्दी हो, जब आप एक्टिव हो, जब आप चल के जा सकते हो, तो वो आपको एक्टिवली करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो खुश रहोगे, आपका एंडोर्फिन और डोपामिन लेवल हाई रहेगा, दैट विल अगेन कीप यू डिजीज फ्री एंड हेल्दी एंड हैप्पी। तो एवरीथिंग, जब ऐसा कोई भी काम आप करते हो जिससे आपको खुशी होती है, नेचुरल खुशी होती है, उससे आपकी एज बढ़ती है, उससे आपके सेल्स इंप्रूव होते हैं, उससे आपकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। तो लर्न टू गिव, एंड फॉर गिविंग यू नीड टू बी हेल्दी, एंड फॉर गिविंग हेल्दी यू नीड टू फॉलो सर्टेन प्रोसेस। So this is my last slide, that invest in health today for freedom for tomorrow, जिससे आप अपने बच्चे, पोते, पर पोते उनके साथ अच्छे से जी सकें। If I have to summarize what I spoke to you today, it's just that inactive मत बनिए। ये मत सोचिए कि हम काम कर लिए, अब बच्चे खिलाएंगे, मैं बैठूंगा, और नहीं। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आपको काम करते रहना है। मसल
को एक्टिव रहने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट एक्टिव करना है, और ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ब्रेन को एक्टिव करना है। बट ब्रेन ही सब कुछ है, अगर आपका ब्रेन नहीं एक्टिव है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन, एडल्ट वैक्सीनेशन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है, तो आपने बोला ना ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। वी आर पुशिंग इट बिकॉज वी नो दैट आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर, we have more than 20-25% of our population who will be 60 plus, because it's growing. And if you are not healthy, then elderly population will be burden for country and society and your kids, your children, your family. So as elderly, we don't want you to be burden. As a elderly, we want everybody, including us, to contribute to the society. क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आपका सबसे ज़्यादा नॉलेज है, खाली आपको अपने ऊपर थोड़ा 45 मिनट रोज ध्यान देना है, 30 मिनट मसल्स मेमोरी के लिए और 15 मिनट ब्रेन मेमोरी के लिए। एंड कुछ एक वैक्सीनेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट है, करा लीजिए जिससे बार बार आपको इन्फेक्शन नहीं हो। कुछ बेसिक हेल्थ चेकअप हैं जिनको आप करा लीजिए। रूटीन चीज़ में पूछना शुरू करिए। एक हमारे देश की ये बड़ी समस्या है, हम पूछते नहीं हैं, हमें जो लोग बोलते हैं हम मान लेते हैं, हम काउंटर नहीं करते। कोई बोलता है कि भाई ये हो जाएगा, मान लेते हो जाएगा, ये हम नहीं सोचते कैसे हो जाएगा, तो कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। सर मेंटल हेल्थ इशू का भी बहुत टैबू है। अगर किसी सीनियर सिटीजन को कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे मुझे बहुत से मैं न्यूज़ में काम करता हूँ, तो उनका हम बोलते हैं तो वो यंगस्टर जो उनके बच्चे वो अरे अभी तो उम्र हो गई, उनका दिमाग खराब हो गया, सो लोनलीनेस होता है, वो उनको कोई एक्टिविटी नहीं, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं, तो घर में बैठे बैठे उनका फिर दिमाग उस तरह। हाँ, तो दैट यू आर राइट। तो वो इसलिए हुआ कि ये परसेप्शन बना हुआ कि भाई हम 60 साल काम कर लिए, बच्चों को बढ़ा दिया, बच्चे हमें पालेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप बड़े हैं, बड़े ही बने रहिए, लास्ट मोमेंट तक बड़े बने रहिए, अपने को हेल्दी रखिए, ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। आपको किसी पे डिपेंडेंट, तभी तो मैंने वर्ड बोला कि पर्पस क्या है इस लेक्चर का, कि आपको इंडिपेंडेंट रखना टिल यू डाई। मेनी टाइम पीपल आस्क अस कि व्हाट वी शुड बी डूइंग, तो आई सेड, somebody asked what is your wish, so I said I have only one wish. I like two things. I don't know how good I spoke to you, but I like to speak across the global forum. That's one of my habit. And second, I'm passionate about saving those patients which are impossible to save. There's only two passion I have in my life, because this is not my main job. ये तो मैं just hobby develop कर रहा हूँ. It's not my main job. My main job is saving extremely sick patients who are on ICU, who are on life support. That's my main passion, my first love. And second, diagnosing extremely undiagnosed patient is my second love. Apart from that, but if somebody asks me what I want to achieve in my life, so I say I want to die while working on bedside of some patient. That's my ultimate aim. That's only, nothing else. And if you do that, तो ये थॉट अभी तक है कि भाई हमने 60 साल सरकारी नौकरी कर ली या 60 साल यहाँ जॉब कर लिया, अब खत्म, अब हम घर बैठेंगे, बच्चे खिलाएंगे, सेवा करेंगे। सर आप किसी की सेवा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। इसके बाद आप कोई भी हो, आप खुद अपने आप में बर्डन हो जाते हो, फॉरगेट अबाउट माँ बाप आपके बर्डन हो, कोई हो। तो ये थॉट को चेंज करने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कि आवर पर्पस टू टॉक दिस टॉक इज नॉट टू टेल यू दैट यू टेक वैक्सीनेटेड और यू गेट मेंटल हैबिट या टैबू। हर समाज में हर चीज़ रिलेटिव होती है। आपको अगर अच्छा रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको कौन रोक रहा है? हमारे सोसाइटी में मैं देखता हूँ कि आई एम वेरी लकी टू आई लिव एट ए प्लेस जहाँ 90 साल के लोग आते हैं, सुबह उठ के 45 मिनट डेली वॉक लेते हैं, हेल्दी रहते हैं, अपना सब काम करते हैं, दे आर गोइंग टू फैक्ट्री, दे आर डूइंग एवरीथिंग, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग, बट दोज परसेंटेज इज 1 or 2%. Now we are heading towards where we will be like huge population as the elderly. We do not want elderly population as a burden to the system, to the health care, to the family, to the society. And to prevent that, everybody has to take care of himself or herself. At the end कुछ भी हो सर, हर इंसान को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। आपको कोई टेका सहारा थोड़े समय के लिए दे सकता है, नॉट फॉर एवर, नॉट फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद तो हर चीज़ की एक कीमत हो जाती है, ठीक है ना।
तो वो कंडीशन नहीं है। तो ये कुछ कॉमन चीजें आप खाली ध्यान रखते हैं। आप अगर मैं बोलूं समराइज करूं कि 3 चीज आप कर लेते हैं लाइफ में तो बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं। एक, आप गिरते नहीं हैं, आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहती है तो आप चलते हैं। एक, आप खाली डेली 30 मिनट वॉक करते हैं तो आपका मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ रहता है। और एक, आप वैक्सीनेट कर लेते हैं। तो दिस कवर्स योर 80% ऑफ द प्रॉब्लम विच हैपेंस फॉर एल्डरली। ओके, so thank you everybody for your attention. I think I took 10 minutes more than what I was given, and it was lovely talking to you and happy to answer you, sir. Please, sir. Problem. We can share. Yes, sir. Yes, sir. जी, Now it has become a common feature for elderly people to go for उसका knee उसका replacement. रीजन क्या था कि एक समय था हमारी एज बढ़ने लगी। पहले हम 50, 55, 60 साल की एज थी, हम 70, 80 होने लगे। और नी रिप्लेसमेंट की भी जरूरत को कम कर सकते हैं। जो ये अगर बोन का हेल्थ आप ध्यान रखें और अपना वजन नहीं बढ़ाएं तो नी रिप्लेसमेंट आपका बंद नहीं हो सकता। वो होता इसलिए है कि आप वेट बढ़ाते जाते हैं, नी के ऊपर लोड आता जाता है, मसल से वीक होती जाती है और आपने बोन का ध्यान नहीं रखा तो नी रिप्लेसमेंट का काम बढ़ रहा है। इट्स ए प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम। इस एज नी ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर द नी इज ए एज रिलेटेड प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम। दिस हैपेंस बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। आप पैसे कमाने या काम में इतने बिजी हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। टुडे आई हैड अ पेशेंट, वेरी सीनियर पर्सन इन एएमसी। ही केम, शी सेड कि सर इतना ज़्यादा काम है कि मैं न तो अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर पा रहा हूँ, न कुछ कर पा रहा हूँ। यस्टरडे ही हैज़ सिंकोपल अटैक, क्या करूँ? 12 घंटे काम करना। हमने कहा चलो 12 घंटे काम करना पड़ता है। कितने समय से आप 12 घंटे से काम कर रहे हो? कितने साल से? 4 साल, 5 साल। हमने कहा कि 87 से 87 आई पास हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड and 85, 9, 10th, 11, 86. Until now, my average working hour is 16 to 17 hours. I never sleep before 1 a.m. in morning, and I have to get up at 7 a.m. and in between. But still I find 2 hours for myself without fail. तो ये तो प्रायोरिटी। जिस दिन कोई आदमी बोले कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, या तो आप अपने आप से आप झूठ बोल रहे हो या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। और जिस दिन आपका कोई दोस्त बोले कि मैं इतना बिजी था कि तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाए, यू नीड टू चेंज द फ्रेंड। इट्स वेरी सिंपल बात है ना। सो ये या तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता जो पॉसिबल नहीं है, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। सिंपल सी बात है। Sir, anti-gravity exercise, anything which we are doing against gravity and for which you don't need to do anything, even if you are standing, even if you are sitting, like हम ऐसे खड़े हैं, हमने ये किया, उठाया, this is anti-gravity, हमने ये पाँव उठा दिया, anything you are holding against gravity is anti-gravity. But mainly हम बात करते हैं कि लेग के लिए anti-gravity मसल जो हमारे प्रॉक्सिमल है, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। They become very important because आपके बॉडी का पूरा वेट वो लेते हैं। होता क्या है कि आपके बॉडी का ऊपर का वेट बढ़ता जाता है और नीचे के मसल्स वीक होती जाती है, एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि ये वीक होते हैं और वेट नहीं ले पाते, फिर आपके गेट चेंज होते हैं, आप बैलेंस बढ़ाने के लिए आपके गेट चेंज होते हैं, जॉइंट अफेक्ट होते हैं। ऐसे तो अगर आप सिंपल पहले दिन से आपका वेट कंट्रोल रखें, और एक सिंपल फार्मूला है कि जितनी आपकी हाइट है, एज ए मेल हाइट माइनस 100 शुड बी योर वेट। सपोज करिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आपका वजन 70 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेंटीमीटर, इंचेस का भी अलग फार्मूला है, बट हम लोग सेंटीमीटर देखते हैं, सेंटीमीटर की बात करते हैं। तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, तो आपका वेट 70 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। और फीमेल के लिए थोड़ा और टाइट है कि वो 110 हो जाता है। तो आपकी हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है फीमेल की, तो आपकी 160 माइनस 110, दैट मीन्स आपकी वजन 50 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर से जितना वजन होगा, उसको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ
तो जैसे मतलब कि जितना दिन आप चलते हैं, रहते हैं, करते हैं, उतना किलो एक्स्ट्रा वजन उठा के सारे जॉइंट्स पे आप चलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जब एक्स्ट्रा बर्डन आप लेके चलते हैं तो आपकी बॉडी, आप एक छोटे बच्चे को जो कि 5 किलो का वजन उठा सकता है, उसको 5.5 किलो दे दीजिए, कितना देर चलेगा? सेम में आपकी बॉडी का आइडियल इतना लेना है, और आप कंटिन्यूसली 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो एक्स्ट्रा वजन देंगे। ये तो भगवान की मेहरबानी है, उन्होंने हमें इतने अच्छे अच्छे ऑर्गन्स दिए हैं, इतने कंपनसेटरी कैपेसिटी दी कि हम चल पाते हैं, और जिसको हम रियलाइज नहीं करते हैं। अदरवाइज इसको तो बहुत पहले फेल हो जाना चाहिए। अगेन वेट हैज बिकम ए वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एंड हम अभी, हाँ, और क्योंकि खाना बहुत इजली मिल गया है, खाने की पूरी इंडस्ट्री एक चलती है। इसकी भी एक बड़ी कहानी है, कभी मौका मिला तो बात करेंगे खाने की इंडस्ट्री की। और वो हमें मोटा बनाया जा रहा है। खाना पहले था, खाना खाने के लिए हमें एफर्ट्स करना पड़ता था। इवन आपको गन्ना भी लेना है तो गन्ना लेने के लिए आपको खेत में जाना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था, फिर आप खुद ही चूसते थे तो एक्सरसाइज होती थी, आप कितना भी गन्ना खा सकते। अभी तो क्या है कि आपको बस खोलना है और चीनी जितना डाल लीजिए, स्विगी आपके घर आता है, ब्लिंकिट आपके घर 1 मिनट में 24/7। द फूड हैज बिकम इजिली अवेलेबल एंड यू हैव मनी, बट यू डोंट नो व्हाट हार्म यू आर डूइंग। तो दिस इज रियली, अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट दिस इज रियली ए एफ्लुएंट क्लास पैंडेमिक प्रॉब्लम विच इज गोइंग टू हार्म अस समवे। सर 2 हैंड थे, पहले आप फिर पीछे। स्लिप के लिए तो सर, स्लिप के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिप ये है कि पहली चीज़ ये है कि नींद नहीं आना पहला इंडिकेशन है कि इसका मतलब आपकी बॉडी को इन जनरल आप उतना नहीं थका रहे हैं जितना थकाना चाहिए। मतलब मैं नहीं बोलता, बट आज तक हम जितने भी लोगों को कोई डॉक्टर को स्लीप की प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वी आर ऑलवेज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। हमें ओवर वर्क कर रहे थे मेंटली एंड फिजिकली, वी आर सो एक्सर्टेड कि हम तो बिस्तर पे गिरते हैं और गिरने के 2 मिनट बाद वी आर डेड मेनी टाइम। सो इधर जोक्स अपार्ट, तो इसका मतलब है कि पहली चीज़ है कि आप वो एक्सर्शन नहीं कर रहे हैं बॉडी का जो करना चाहिए, यानी कम कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि लेट नाइट तक अगर आप टीवी देखते हैं तो ब्लू लाइट से इट इज़ वेरी बैड। सेम में लेट नाइट तक अगर आप मोबाइल देखते हैं तो उसका ब्लू लाइट है, वो स्लीप को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जो रिसेंट चीज़ें हैं। तो सिंपल तरीका है कि अगर आप लेट खाना खाते हैं, वो भी आपकी स्लीप को अफेक्ट करता है। तो अगर आइडियली 7 to 8 आवर्स आपको सोना चाहिए डेली, आइडियली 8 आवर्स इज गुड स्लीप। वो अचीव करने के लिए सिंपल सी बात है कि आप 6 बजे 7 बजे खा लीजिए, इसका थोड़ा आपको वॉक करना कर लीजिए। मोबाइल अगर यूज़ करना है 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, अगर बहुत ज़रूरी नहीं तो मोबाइल मत देखिए, अननेसेसरी के रील्स मत देखिए, टीवी मत देखिए प्रोग्राम। और अगर आप रोज़ इस एज में, मैं 12-18 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 घंटे 5 घंटे भी एक्टिव काम कर रहे हैं और 30 मिनट वॉक ले रहे हैं, तो बाय द इवनिंग यू विल बी टायर्ड टू स्लीप। नहीं हो रहा है, मैं नहीं बोलता कि नहीं, देयर आर प्रॉब्लम विच अफेक्ट, बट इन जनरल जो प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है वो आपके हाथ में है कि आपका अगर एक रूटीन मेंटेन होगा तो आप सो सकेंगे। एक सर पहले किसी ने उधर उठाया था हाथ, उनको, देन सर आई विल कम टू यू समबडी। या सर, regarding something about sleep apnea. स्लीप एपनिया सर, वैसे तो मेरा ये सब्जेक्ट है स्लीप एपनिया। मेडिकली भाषा में बोलूं तो वो भी एक इन जनरल ओबेसिटी की प्रॉब्लम, ओबेसिटी इज मेन रीजन। होता क्या है कि जब हम सोते हैं तो हमारी नाक खुली रहनी चाहिए, जो कि हम सांस जो लें वो लंग्स में जाए और बाहर आए। और जब हम सोते हैं हमारा वजन ज़्यादा होता है तो हमारे ये फैट इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे एयर कॉलम को कोलैप्स कर देते हैं, जो सबसे कॉमन है, और हम सांस नहीं ले पाते। तो अब रात में जब सोते हैं तो कहने के लिए तो सो रहे होते हैं, बट हर सेकंड में हमारी नींद टूटती है। तो नींद जब टूटती है तो हमारी साउंड स्लीप नहीं आती। आदमी को टायरलेसनेस ख़त्म करने के लिए या इंसान को अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए, या सोना क्यों जरूरी है मालूम है आपको? क्यों सोना चाहिए आपको? अच्छी स्लीप क्यों आनी चाहिए? रिजुवेनेशन के लिए। और रिजुवेनेशन के लिए एटलीस्ट 2 साइकिल के 2 तरह की स्लीप होती है, एक एनआरईएम एक आरईएम। तो 2 साइकिल अगर आपको आरईएम की नहीं आ रही है तो आप रिजुवेनेट नहीं होंगे। वो स्लीप ऐसी होती है जिसमें कि आप उस समय आपको कोई जगह भी तो लाइक यू आर डेड, यू आर कंप्लीटली गॉन, यू आर जस्ट ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग इज रिजुवेनेटिंग। वो अचीव तभी होता है जब आप
एयर आपका खुला हो और कॉलम आपके बॉडी पीस पे हो. सॉरी. सो स्लीप एपनिया की जो प्रॉब्लम है वो होती है अपने वेट के हिसाब से, ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से. इट्स ए मेडिकल प्रॉब्लम. वी नीड टू, आज जब स्लीप एपनिया है तो उससे हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और बढ़ती है, बिकॉज यू गो इन विशियस साइकिल. तो अगर आपको स्लीप एपनिया है तो उसको ट्रीट करने के कुछ तरीके हैं कि आपको वेट कम करना है. कुछ मशीन्स आते हैं, सिस्टम आते हैं जो आपके सोते समय एयर वे को ओपन रखते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. बट अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि स्लीप एपनिया चली जाए, तो वेट रिडक्शन के अलावा कुछ ऐसे स्लीप एपनिया आते हैं तो इसमें सर्जरी करके हम एयर को उसको ओपन कर सकते हैं. बट सबको नहीं होता है, नॉट फॉर एवरीबडी, बट देयर आर पेशेंट हु कैन गेट बेनिफिट. तो अगेन इट्स ए मेयर रिलेटेड टू द वेट. और वेट इसलिए कि आपके जब सोते हैं तो आपका एयर कॉलम बंद हो जाता है. सर आप कुछ पूछ रहे थे. Not all, but sir, thank you. Not all, but if you can reduce weight, if it is related to weight, yes. If it is related to the anatomical defect, yes. प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको स्लीप अपनी आ चुकी होती है उस समय आपका वेट इतना ज़्यादा होता है कि उसको कम करने, बट वी हैव रिवर्स इट बाई reducing weight, by doing bariatric surgery. There are patients who has stopped taking BiPAP. It is reversible, but if it is related to the weight, and 7 out of 10 sleep apnea is because of weight. So there is high probability that if you reduce, but there are lean and thin people who also have sleep apnea. They have anatomical defect that can be done corrected surgically. So it's not necessary that you take, but people find it convenient to take an IV, keep same weight, eating and drinking, enjoying the life. Okay, there is one CPAP, sleep overnight, remain comfortable. So that's how it become. सर जो उसकी साइकिल जो होती है ना, उससे तो हम 4-5 जो इसकी साइकिल होती है, REM की जो साइकिल होती है, 2 cycle, each cycle lasts 30 to 40 minutes, and after that is again go to, actually each cycle is of around 190 minutes. Out of that 90 minutes, 20-30 minute time is there where you are in deep sleep. That's called. Rest of things are varies in different. There are 4 different stages than stages. But those 30 minutes are the real. If you don't achieve that, lot of people have sleep apnea don't achieve. So they remain tired. They cannot do. Their efficiency goes down. And they remain tired forever. There are days. I know one of very famous CEO who could not achieve for 2 years that REM, and then he has to leave the job, get surgery done, and for 6 months he has to only sleep to achieve and rejuvenate himself. So this is kind of things can happen. So sleep apnea is really very bad, and it's one of the again very bad industrial problem. We have to stop. तो बात करते हैं तो आजकल जैसे लेबोरेटरी टेस्ट वाले ये बताते हैं कि आपको इतने में 200 टेस्ट करवाने हैं, 50 टेस्ट करने हैं. तो क्या हम लोगों को इतने सारे टेस्ट करवाने चाहिए? नहीं. डॉक्टर जितना एडवाइस करें उतना ही हमें करवाना चाहिए. कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बॉडी में ना जो नॉर्मल हो रही होती हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती कुछ, बट उनको तो क्या है कि दिखाने के लिए कि हम इतने पैसे में इतने टेस्ट कर दे रहे हैं, बिकॉज उनकी एक किट होती है, वो किट में उतने टेस्ट होते हैं, तो वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं. बट आइडियली स्पीकिंग कोई भी लैब टेस्ट 2 चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए. एक ओवर द काउंटर बिना डॉक्टर को बताए मेडिसिन नहीं करनी चाहिए, और दूसरा ओवर द लैब जाके खुद कोई टेस्ट नहीं करना चाहिए अनटिल होता. इट्स नॉट गुड. अल्टीमेटली इज गोइंग टू लीड यू टू अननेसेसरी प्रॉब्लम, और 2-4 और डॉक्टर को दिखा के फाइनली यू विल बी बैक टू जीरो. Yes, it's again related to age. But if you keep yourself healthy, it will not. Sir, last question after that, Mahendra bhai is saying we have to stop it. Last, आपका. हाँ. Yes, it is treatable. Sir, एक हम ना हमारा लेक्चर खाली कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम पे रखेंगे, तो हम एजिंग की बात कर रहे थे. We will only on common medical problem, how to handle day to day, जो नुस्खे की बात होती है. We'll keep some time. But allergic rhinitis is treatable and it can be treated. So you need to find right doctor. He will do the good job. चलो, thank you.
Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. I'm sorry that I had to stop it because it had become, everybody has got many medical problems and we want to find solutions very fast, but it's not that easy. As he says, we have to follow certain discipline and you have to do the things day in and day out in a particular way. I'm sure you have got some good guidance, good guidelines as to how do we age gracefully and remain active. And I thank you very much for coming and giving time. And as you have suggested, maybe we'll have to keep one particular lecture only on sleep. सर फुल डे प्रोग्राम रखिए जरूर जरूर रखेंगे. Thank you very much for coming. Thank you.